And well, Prime Minister Narendra Modi kicked off his campaign in Battle for Bihar with a visit to Karpuri Gram in Samastipur district, the birthplace of Bharat Ratna Karpuri Thakur. There, he paid tribute to the late leader, met his family and toured a model hut built by the local administration, showcasing Thakur's life and struggles. Chief Minister Nitish Kumar accompanied him during the visit. Prime Minister Modi then addressed a major public rally, first in Samastipur and then in Begusarai. During his addresses, Prime Minister, while attacking the RJD, said that Bihar would keep Jungle Raj away. He alleged that RJD leaders were roaming free on bail in corruption cases worth crores and accused the opposition of only knowing how to loot the public. Amid repeated attacks by Tejashwi on who will be NDA's chief ministerial face, Prime Minister Modi asserted that the NDA under Nitish Kumar's leadership would secure a historic mandate in the upcoming polls. Prime Minister also attacked the opposition, saying that the state no longer needed the lantern when it had electricity. Prime Minister also warned that the Mahagathbandhan wanted to bring Jungle Raj back. He further renewed his Latbandhan attack on the opposition alliance. जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस का विकास से 36 का नाता है और आप भी जानते हैं, विकास के लिए सबसे जरूरी है कानून व्यवस्था। जहां आरजेडी जैसे दल हो, वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आरजेडी के शासन में यहां रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण एक उद्योग के रूप में फले फूले। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है, वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। एनडीए यानी सुशासन, एनडीए यानी जनता की सेवा, एनडीए यानी विकास की गारंटी। और इसलिए आज आपका ये उत्साह देखकर मैं कह सकता हूं, इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को।
चाचा जी कितना बार यहाँ आए, हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, इन्ने से होने, उन्ने से होने। लेकिन हमको दुख है इस बात का कि भाजपा के लोग उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। And well, as the polling date approaches, Mahagathbandhan seems to be ironing out the differences within the alliance. Both Congress and the VIP have resolved differences on 5 key seats, where the Mahagathbandhan allies were going head-to-head in the polls, raising concerns over friendly fight. Grand Alliance has successfully resolved issues on Gaura Boram, Varsali Ganj, Babur Barhi, Lalganj and Pranpur seats. The Mahagathbandhan that is set to release its manifesto on the October 28th, which is going to be a joint manifesto, where the Mahagathbandhan reached this consensus. RJD and Congress have promised to be included. RJD's Har Ghar Naukri and Jeevika Didi schemes will be a part of this manifesto. Tejashwi's Ma and Beti schemes have been prioritized. The united Mahagathbandhan has surfaced after RJD leader Tejashwi Yadav was officially projected as the opposition's chief ministerial face for Bihar, as leaders stressed that the coming election would mark a turning point for the state, and VIP chief Mukesh Sahani was named deputy chief minister face. देखो, हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार जो है केस मुकदमा, छापा मारी, हमारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करवाना, उम्मीदवारों के छापा मरवाना। बताइए, 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? मैं बधाई देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, और जो भी साथी जिन्होंने तय किया है तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी और इंडिया गठबंधन को एक मौका देंगे। कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने कितना ब्लैकमेल किया इनको सीएम का चेहरा बनाने के लिए, वही मुकेश जी के द्वारा भी किया गया। उन्होंने तो सारे समझौते कर लिए सिर्फ एक डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए। अगर आप इतना झगड़ा करके छीन छान के अगर आप बने, इसका मतलब स्वाभाविक स्वीकार्यता गठबंधन के भीतर आपके चेहरे को लेकर नहीं है। सत्ता के लिए भूखे हैं और जो लोग भारत माता की सेवा और बिहार की जनता की सेवा के लिए आतुर हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी हों, पासवान जी हों, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एक साथ मिलकर बिहार की जनता और देश की जनता की सेवा। यहाँ विकास की बयार है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, जो हमारा गठबंधन है एनडीए का, उसके पक्ष में समर्थन की लहर चल रही है। विकास मुद्दा है। जनता जंगल राज नहीं चाहती, जनता मंगल राज चाहती है, जनता राम राज चाहती है। वो क्राइम स्टेट बनाना चाहते हैं, हम बिहार को प्राइम स्टेट बना रहे हैं। विकास, नीतीश बाबू, मोदी जी, एनडीए और भ्रष्टाचार नहीं, लोगों ने सिर्फ विकास ही देखा है। वो सारा समीकरण देखे, और जैसे महागठबंधन में आपस में सब लोगों का कबड्डी चल रहा है, सब एक दूसरे का जो उन कपड़ा फाड़ रहे हैं, तो उससे पता चल गया कि जनता भी जान गई है कि इन लोगों का धरातल पे कुछ नहीं है महागठबंधन का। और विकास, बिहार की ऊर्जावान विकास तभी होगा जब केंद्र से बड़ा पैकेज आएगा। हम लोग इतनी सीट कभी नहीं पाए थे जितनी 14 नवंबर के रिजल्ट में आप देखेंगे। मुख्यमंत्री पद का तो कोई वैकेंसी है नहीं, और 25 से 30 नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और आप जानते हैं कि जिनको बनाया है वो रेलवे घोटाला में 4 सीटेड है। डेली जा कर के कोर्ट में दिल्ली में अपीयर होना,
जो लोग उनको घोषणा किया है कांग्रेस वाले, वो भी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ परिवार है। तो एक परिवारवादी पार्टी कांग्रेस दूसरे परिवारवादी पार्टी को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब बिहार की जनता सब बात समझती है, ये आपस में ही ये लोग गेम खेल रहे हैं। और इसके अलावा उनका ट्रैक रिकॉर्ड परिवार का सब जानता है कि कैसा बिहार में उनका काम रहा है और नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी ने ये बात शायद इसलिए की, जो पिछले दिनों जो चारों तरफ माहौल गर्म, कहीं जंगल राज, कहीं चारा चोर, तो लोगों को ये दिखाने की कोशिश करी है कि आप ही डायरेक्ट चलाओगे। पर क्या अगर 6 करोड़ के करीब वहाँ वोटर हैं तो क्या 6 करोड़ मुख्यमंत्री हो सकते हैं? कैसी बात है ये। पर एक बात तो पक्की है कि एनडीए से लड़ाई तो दूर दूर तक इनकी है ही नहीं। पर आपस में जो लड़ाई है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की और आरजेडी की, उसमें तेजस्वी जीते, कांग्रेस को बिल्कुल घुटने के बल टिकाया और हाथ उठवाए और उनको उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं करने दिया।